Viewers, welcome back to my channel. In communication series, now we will today see channels of communication. इसके पहले हमने barriers to communication देखे थे. आज हम देखेंगे channels of communication. There is a formal communication and informal communication. In formal communication is referred to interchange of information officially. ऑफिशियली जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे. जैसे स्कूल कॉलेज किसी ऑफिस में हम जाते हैं, सो विच इज़ नोन एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल एंड इज डेलिब्रेट एफर्ट. दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन रीच टू डिजायर्ड प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंसेस at a little cost and proper way. Now example that request, command, order, report, etc. These are the known as a formal communication. Then what is informal communication? The communication which does not follow any predefined channel for the transmission of information, which is known as a informal communication. This type of communication moves freely in all directions. Suppose you are talking with your friend, you are talking with your family member, you are discussing your personal life, your personal matter. आप आपके जैसे शेयर कर रहे हैं आपके फीलिंग्स, आप गॉसिप कर रहे हैं आपके दोस्त के साथ, आप चैटिंग कर रहे हैं, कोई डिस्कशन जो आपका पर्सनल चल रहा है, विच इज़ नोन एज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट upward communication and downward communication. Now what is upward communication? Upward communication is the process of information flowing from the lower level of a hierarchy to the upper level. Upward communication is a process of information flowing from the lower level to the hierarchy to the upper level. मतलब जैसे कोई लो लेवल से सबऑर्डिनेट इज स्पीकिंग विद द सुपरवाइज़र, कोई सबऑर्डिनेट सुपरवाइज़र से अपनी बात रखता है, बात करता है, तो वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशन or less that form of communication are becoming less popular. The more traditional organization types as the places people were into the separate rank. Upward communication helps employee to express their requirement, ideas and feelings. Suppose that there is an institution, and in institution the worker want something or something is required for the workers, and they send a email or a letter to the superior. वो अपने बॉस को एक लेटर लिखते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है. कोई वर्कर्स काम करने वाली इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज़ एक मेल ड्राफ्ट करेंगे और वो मैनेजर को भेजेंगे और बोलेंगे हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये मांगे हैं, हमारे पूरे करो, या कुछ आइडियाज़ है, कुछ सजेशंस है वो देते हैं. तो ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. मतलब कोई क्लर्क मैनेजर से बात करता है वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन, कोई प्यून मैनेजर से बात करता होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. मतलब जिसका पोस्ट, निचले पोस्ट का इंसान ऊपर जिसकी पोस्ट है, जो सुपेरियर है उससे अगर कम्युनिकेट करता है तो वो हो जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. देन in upward communication, it is important source of information for business decision. It helps in altering top management about the requirement or changes in the organization, and due to the upward communication it is possible. Then the downward communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट. मतलब सुपेरियर से सबऑर्डिनेट. जो देखो पहला अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या था, सबऑर्डिनेट से सुपरवाइजर तक इन्फॉर्मेशन जा रही थी, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन. ओके, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जैसे नीचे है सबऑर्डिनेट और ऊपर है सुपरवाइज़र, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन. बट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, सुपरवाइज़र, सुपर और द सुपेरियर communicate with the subordinate which is known as a downward communication, so it is a difference between upward and downward. Though downward communication managers communicate organizational goals, policies, procedure, order, instruction. जैसे मैनेजर को कुछ नीचे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको क्या देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ ऑर्डर्स देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, डिसीजन सुनाने हैं. तो ये जो प्रोसीजर है वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इन दिस प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैसेज ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव रीच टू द लोअर लेवल मूविंग थ्रू द चेन ऑफ हायरार्की. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ रिटन और ओरल. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है. जैसे रिटन फॉर्म हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के देख सकते हैं, मैनुअल्स हैं, हैंडबुक्स है, नोटिसेस है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ है, डिस्प्लेज है. वेर एज
फेस टू फेस कन्वर्सेशन में टेलीफोन कन्वर्सेशन हो सकता है, स्पीचेस हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो कोई मैनेजरल पोस्ट का, जैसे हमें कोई हैंडबुक दे रहा है, कुछ नोटिस हमें दे रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कुछ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ आ रहे हैं, कुछ डिस्प्ले हो रहा है, तो ये हो गया रिटन फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ओरल फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जब टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रहा है एम्प्लॉय का और मैनेजर का, या मैनेजर कोई सेमिनार ले रहा है, स्पीच दे रहा है, मीटिंग ले रहा है, इट इज़ नोन एज अ दैट रिटन form of downward communication. After that there is a horizontal communication. Now horizontal communication, the term lateral communication can be used interchangeably as a, मतलब हम horizontal communication को lateral communication भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, lateral communication भी कह सकते हैं, किसे, horizontal communication. So lateral communication and horizontal communication with both are same. Horizontal communication is a communication among people at the parallel or the same level, position, rank or status. जैसे clerk to clerk communication, clerk to clerk communication, or the manager to manager, manager to manager, it is known as a हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। दो जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो सेम पोस्ट के हैं, सेम पोस्ट पे है, तो वो जो कम्युनिकेशन हो जाता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। सेम लेवल है, सेम पोजीशन है, सेम रैंक है। दो टीचर किसी इंस्टीट्यूशन के आपस में बात कर रहे हैं, तो उनका पोजीशन सेम है, वो दोनों ही टीचर है, तो उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हो गया हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ओके, सो द हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट फ्लो laterally within the organization, involves the person at the same level of the organization, normally involve the coordinating information, allow people with the same or similar rank, which is known as a horizontal communication. After the horizontal communication, we will see the diagonal communication. What is a diagonal communication? Diagonal communication is the communication held between different structures of business firm. It is the communication between the higher and lower sector of business firm. What is a diagonal communication? Diagonal communication is that there is a higher and lower sectors of the business firms. It is also known as a cross-functional communication. It is known as a cross-functional communication also. Why? Because the communication take place between the higher and lower section of the business firm. So this point is very important, higher and lower sector of business firm. Okay. And then after that there is a very important that grapevine communication. Grapevine communication, if communication is done without maintaining the formalities, कोई भी formalities ना रखे हुए जो कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो. इट इज़ अ इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन द नोन एज ग्रेपवाइन. द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ ग्रुप. देयर इज अ नो फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है. तो ग्रेपवाइन में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, इसीलिए उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल भी बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रेपवाइन ऑल्सो. It take place when the people of organization or group, especially the same level or rank, gather or meet together and discuss informally. मतलब सेम रैंक के सेम सेक्टर के लोग एक साथ आते हैं, कुछ गॉसिप करते हैं, कुछ एक साथ बातें करते हैं, which is known as a that the grapevine. Then specially of the same level or a same rank. After that it has no definite pattern or direction, through it is largely horizontal in the nature. उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बात करने का कोई पैटर्न नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं. इट इज़ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ ओरल. इट इज़ अ काइंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वे में वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसे बोला जाएगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के कुछ टाइप है. जो उसका पहला टाइप है वो है सिंगल स्ट्रैंड चेन. सिंगल स्ट्रैंड चेन. Single strand chain involve the passing information through a line of person to the ultimate recipient. In figure, person A tell B, who tells C, who tells D, and so on till the information. देखो, A ने B को इन्फॉर्मेशन, ये है, उसने B को इन्फॉर्मेशन पास किया, B से फिर C को चला गया, C ने D को बताया, D ने E को बताया, E ने F को बताया, F ने E को बताया, और फिर F.
सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए ग्रेप वाइन पैटर्न ऑफ सिंगल स्ट्रैंड में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक से दूसरे की तरफ इंफॉर्मेशन पास होता है। तो ये ग्रेप वाइन का एक टाइप है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड चेन। दूसरा है गॉसिप चेन। इन द गॉसिप चेन वन पर्सन सी कैन टेल द इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। समझो कि किसी को पता चला एक आध कोई बहुत सीक्रेट न्यूज़ है और एक पर्सन को पता है, उसने गैदरली बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम बता दी। चेन इज जस्ट लाइक द व्हील वेयर वन पर्सन स्टेज एट सेंटर और बाकी के आजू बाजू भी खड़े वो सुन रहे हैं। जैसे देखो कोई हमें जैसे फेरी वाला आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे कुछ, या सेल लगी है और बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर होकर सुन रहे हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। सो विच इज़ अ गॉसिप चेन। ये इज़ द सेंटर एंड अनदर पीपल आर गैदर अराउंड हिम, विच इज़ गॉसिप चेन, उसे कहेंगे गॉसिप चेन। तीसरा है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन इज रैंडम प्रोसेस। प्रोबेबिलिटी चेन क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है विच समवन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द अदर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन दीज अदर्स टेल स्टिल अदर इन सिमिलर वे। एक ने जैसे दिस चेन इज मे ऑल्सो कॉल्ड द रैंडम प्रोसेस, इसे रैंडम प्रोसेस भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी चेन को रैंडम प्रोसेस भी कहा जाता है। सो दिस इज हाउ द ग्रेप वाइन चैनल हैव अ पार्ट्स दैट सिंगल स्ट्रैंड चेन, gossip chain, probability chain. After that, cluster chain. Now here is the probability chain का pattern दिया गया है, देखो। Then the cluster chain. In the cluster chain, a person tell the information to the selected person who may in turn relay और पास इन्फॉर्मेशन सेलेक्टेड पर्सन। मतलब एक क्लस्टर चेन है, सेलेक्टेड पर्सनस को ही वो इन्फॉर्मेशन सेंड करे। देखो यहाँ पे ए है, ए ने बी सी डी को इन्फॉर्मेशन पास किया। यहाँ पे सिर्फ ए ने किस किस को इन्फॉर्मेशन पास किया है, तो ए ने इन्फॉर्मेशन पास किया है बी की तरफ, उसके बाद सी की तरफ और डी की तरफ। फिर डी ने 3 लोगों को बताया है, फिर बी ने 3 लोगों को बताया, फिर सी ने 2 लोगों को बताया। इस तरह से ये ग्रेप वाइन पैटर्न प्रोबेबिलिटी चेन बढ़ते जा रहे हैं। देन क्लस्टर चेन बढ़ते जा रहे हैं, सॉरी। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फॉलोज दिस चेन। क्लस्टर चेन इज शोन इन दिस फिगर, तो विच इज नोन एज अ क्लस्टर चेन ऑफ communication. This is how the channels of communication works. In next video we will see the listening skill. Keep watching. Thank you. If you like my video, like, share and subscribe. Thank you.